I would like to request to line respected Honorable Bharat Mehta to introduce the installing officer, please. Installing officer નો પરિચય આપવા માટે હું લાઈન ભરતભાઈ મહેતા સાહેબને વિનંતી કરીશ. અત્રે ઉપસ્થિત થશે ભરતભાઈ મહેતાને પણ તાલીઓના નાદથી આપણે વધાવીએ. સન્માનીય ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર, સન્માનીય ઇન્સ્ટોલિંગ ઓફિસર, મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સર્વે મિત્રો, આજે આપણે અને ખાસ કરીને મારે एक एवं व्यक्ति नो परिचय आपवानो छे। संजय जी ने आपका परिचय देने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें मैं आपको सुप्रत करना चाहता हूँ। दोस्तों, संजय खेतान, लायन्स संजय खेतान एटले एक एवं नाम तमे बधाए पेपरनी न्यूज़पेपरनी अंदर के आपणा टीवी ની અંદર જોયું હશે, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में। आ कौन बोले छे? अमिताभ बच्चन। आ नेपाल ना अमिताभ बच्चन छे। शा माटे? नेपाल टूरिज्म गवर्नमेंट नु जे चाले छे तेमणे आपणा लायन्स संजय खेतान ने नेपाल ना टूरिज्म ना ब्रांड एम्बेसेडर बनाव्या छे। આપણા માટે જેટલું મહત્વ અમિતાભ બચ્ચનનું છે, નેપાળીઓ માટે એટલું જ મહત્વ લાયન્સ સંજય ખેતાનનું છે. મિત્રો, એનો પરિચય આપવો એના પહેલા એનો એક એવો પરિચય તમારી સમક્ષ મૂકું છું. આપણે એવું કહીશું ને, પ્રેસિડેન્ટ બન્યા, આ સાલમાં સેક્રેટરી બન્યા, ટ્રેઝરર બન્યા, આરસી બન્યા, ઝેડસી બન્યા, એટલું બધું બને તો જ આ લેવલે પહોંચે. આપણે એક એક સ્ટેપ પાસ કરી ત્યારે ગવર્નર બનીએ. મિત્રો, એક તારીખ સહિત વાત કરું આપને. 10/7/2017 सोमवार एक आपरी डिस्ट्रिक्ट ની અંદર આપણા વ્યક્તિ દ્વારા એવી ઘટના બની. થાન ઘટના મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ, લાયન મહેન્દ્ર પ્રજાપતિ નો મને ફોન આવે છે કે ભરતભાઈ, નેપાળની અંદર એવું બની ગયું છે, કાઠમંડુથી નેશનલ પાર્ક ની અંદર મારા કુટુંબની દીકરી नेशनल पार्क में फरती थी त्यारे 2 हाथी बाज्या। संजय जी, आपको शायद याद नहीं होगा, मेरे को याद है बराबर वो सीन, वो दिन। 2 हाथी बाज्या में 18 वर्षनी दीकरी जे महेंद्रभाई प्रजापतिनी कुटुंबिक भाणेज थाय एना पर पग मूकी दीधो ने 18 वर्षनी दीकरी त्यारे ने त्यारे मृत्यु पामी। હવે એને મને ફોન આવ્યો કે ભરતભાઈ કે નેપાળની અંદર કાઠમંડુથી નેશનલ પાર્ક 300-400 કિલોમીટર દૂર થાય છે, ત્યાં સાંજ પડી ગઈ છે. હવે ડેડ બોડીને એમ્બ્યુલન્સની જરૂર છે, એને કાઠમંડુ લાવવાની છે, એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનું છે, એને કોફિન બોક્સની જરૂર છે, એને મોર્ચરીમાં રાખવાની છે, નેપાળ એમ્બેસીમાંથી મંજૂરી લેવાની છે અને એ ડેડ બોડીને અમદાવાદ લાવવાની છે. ને અત્યારે છેલ્લો દિવસ એનો ટૂરનો છે, એની પાસે ટિકિટના પણ પૈસા નથી, કારણ કે એ જે ટૂરમાં ગયેલા એ સમય પૂરો થઈ ગયો અને માણસ છેલ્લો દિવસ હોય એટલે ટૂરમાં બી પૈસા ખતમ થઈ ગયા હોય. તેના દીકરીનું નામ સ્નેહા નરેશભાઈ કાનપરા. મને કે તમે ભરતભાઈ કંઈક એવી વ્યવસ્થા કરો, તમારા લાયન્સની અંદર સારા ગુડ ઓફિસીસ યુઝ કરીને મને આમાં કંઈ હેલ્પ કરી શકો તો કરો. ત્યારે મેં કહ્યું કે નેપાળની અંદર તો આપણે એક જ વ્યક્તિને ઓળખીએ છીએ, એ છે લાયન્સ સંજય ખેતાન. ને શા માટે ઓળખીએ છીએ કે કારણ કે એ વીના મહેતાની ગવર્નરશીપમાં ઇન્ટરનેશનલ ડિરેક્ટર હોનોલુલુ હવાઈ ખાતે 2015-16 અને 16-17 ઇન્ટરનેશનલ ડિરેક્ટર બનેલા. એટલે મારો એટલો બધો પરિચય એઝ એ ગવર્નર વીના મહેતાનો એની સાથે નજીકનો પરિચય છે. મેં વીનાને કહ્યું કે સંજય ખેતાનને ફોન લગાવીને એને મારો પરિચય આપો, તો એને વિગત આપો. અને મીના એને ફોન લગાડ્યો. એણે તરત જ કહ્યું, મીનાજી બોલીએ ક્યાં કામ હે हमको याद किया. એટલે એણે કહ્યું કે મારા હસબન્ડને ફોન આપું છું, તમે એની સાથે વાત કરો. આપણા डिस्ट्रिक्ट में बनेली घटना थी जेनो परिचय पूरो थी जैसे. એટલે મેં એમને કહ્યું, સંજયજી, मैं मीना मेहता के हस्बैंड पास गवर्नर भरत मेहता बात कर रहा हूँ. ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति के साथ उसके फैमिली में ऐसा हादसा हो गया है, अभी आप इसमें आप हमको कुछ मदद कर सकते हैं, आप तो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं. એને તરત જ કરી કહ્યું કે ભરતજી, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, अभी आप किसी को भी फोन मत करो, ये मेरी जवाबदारी, इसका काम हो जाएगा. इमीडिएटली हमने
નેશનલ પાર્કમાં એમ્બ્યુલન્સ ઊભી કરી. મિત્રો સાંભળવા જેવી વાત છે. લાયનિઝમ ક્યાં કામ આવે છે એ જ આપણને પરિચય છે. ઇમિડિયેટલી ઊભી કરી વ્યવસ્થા. ત્યાંથી એ જે પરમિશનો લઈ ડેડ બોડીને કાઠમંડુ લાવ્યા રાત્રે. ત્યારે સંજયભાઈ અને સંગીતા વગેરે પોતે અને નાની સંગીતાજી હાઈવે ઉપર રાત્રે ઉભા રહ્યા અંધારામાં, અને એમ્બ્યુલન્સ એમણે એમ બીજા શબ્દમાં કહી કે રિસીવ કરી. ઇમિડિયેટલી એનું રાત્રે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું. એક ગવર્મેન્ટની હોસ્પિટલની અંદર મોર્ચરીમાં એની ડેડ બોડી મૂકી. સવારે બીજે દિવસે સવારે ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ હોલિડે હતો, મંગળવારનો દિવસ હતો. બીજે દિવસે સવારે એમ્બેસીમાંથી આ ડેડ બોડીને કોફિન બોક્સમાં ફ્લાઇટમાં મૂકી અને અમદાવાદ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાની ટિકિટ પણ એમણે ખર્ચી. ना व्यक्ति ना बता हमें एम कि संजय भाई हम आपको बाद में पैसा भेज देंगे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो दूसरी टिकट निकलवा सके, क्योंकि डोंट वरी कोई फिक्र मत करो, हम सब बैठे इधर. बीजे दिवसे सवारे संजय भाई ने उठवा जरा मोड़ू थयुं, कारण के एम्बेसी खोलावानी हती, बंद हतो ते दिवसे ऑफिशियल हॉलिडे. संगीता बेने एमने सवारे 8 वागे कीधुं कि मीना जी का आपके पास काम एक पेंडिंग पड़ा है, आप जल्दी जाओ, एम्बेसी खुलवाओ और इनकी डेड बॉडी की परमिशन लो तो डेड बॉडी अहमदाबाद पहुंचेगी. आ सत्य घटना तमारी सामे रजू करी रह्यो छुं. संगीताजी एमने जगाड्या, जल्दी जल्दी रवाना कर्या. एमने पोताना गुड ऑफिसिस ओपन खोली, यूज करी, एम्बेसी ओपन करावी અને આનું ડેથ સર્ટિફિકેટ એની પ્રોસિજર બધી કરી પોતે એરપોર્ટ ઉપર આ કોફિન બોક્સને મૂકવા ગયા. ફ્લાઇટમાં રવાના કરીને મને ફોન કરે છે કે આટલા આપણે સાંજે 4 વાગે આ ડેડ બોડી અમદાવાદ પહોંચશે, તમે એને ઉતારવાની વ્યવસ્થા કરજો. મિત્રો, આ છે સાચું લાયનિઝમ અને આ છે સંજય ખેતાન. એના પૈસા ટિકિટના પણ અમે એમને પછી મોકલાય કે કોઈ ઉતાવળ નથી, કોઈ જરૂરત નહીં, પણ આપણી ફરજ થાય ને કે એને આપણું કામ કરી દે. મિત્રો, લાયનિઝમ ક્યાં કામ આવે, કેવી રીતે કામ આવે, એનો એક જીવતો જાગતો દાખલો આજે મને એમની સમક્ષ રજૂ કરવાનો જે મોકો મળ્યો છે. હું મારી જાતને હૃદયપૂર્વક ભાગ્યશાળી માનું છું. મિત્રો, ઘણી વખત આપણે કહેતા હોઈએ કે લાયનિઝમ શું છે, લાયનિઝમ આ છે. નેપાળ જાઓ તો આ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર શું છે, શું હસ્તી છે, શું વ્યક્તિત્વ છે, એ નેપાળમાં જઈને જોવો તો મને ખબર પડે. કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે મારી સાથેના મારા કલીગ ગવર્નર મિસ્ટર ગિરધારી, લાયન ગિરધારી, એ અવારનવાર એમની વાતો કરતા હોય છે કે સંજય ખેતાન અમારું કેવું વ્યક્તિત્વ છે. મિત્રો, લાયન્સ ક્લબ્સ ઇન્ટરનેશનલ જનરલી એક હાઈ પદવી પર પહોંચ્યા પછી એમ્બેસેડર ઓફ ગુડવિલનો એવોર્ડ એને આપતું હોય છે, પરંતુ લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલે તેમને ઇન્ટરનેશનલ ડિરેક્ટર બન્યા પહેલા આપણો ઉચ્ચતમ એવોર્ડ એટલે એમ્બેસેડર ઓફ ગુડવિલથી એને સન્માનિત કર્યા. એ પણ આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે જેવા આવડી હોય છે. હમણાં જ આપણા એમઓસીએ કહ્યું કે વ્યવસાય તેઓ સારા બિઝનેસમેન છે અને આમ પોતે બીરગંજ લાયન્સ ક્લબના સભ્ય છે અને પોતે એન્જિનિયર પણ છે. એની વાત હું આગળ નથી કરતો, પરંતુ તેઓ લાયન્સના હોદ્દા ઉપર છે તે સિવાય નેપાળની અંદર અસંખ્ય એવી સંસ્થાઓ છે એના ઉચ્ચતમ હોદ્દાના ટોપ પોસ્ટ ઉપર આજે પોતાની સારી સેવા આપી રહ્યા છે. મેં જેમ કહ્યું ને કે પ્રેસિડેન્ટ બને, ઝોન ચેરમેન, રિજિયન ચેરમેન, ડીજી, વીડીજી, મલ્ટિપલ કાઉન્સિલ ચેરમેન, એ બને તો જ આ લેવલે પહોંચાય એની વાત નથી કરતો. મિત્રો, એને ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડેન્શિયલ મેડલ 9 મળ્યા હોય, 10 સર્ટિફિકેટ મળ્યા હોય, કે ઇન્ટરનેશનલ એને સારી પોસ્ટ આપી હોય, એ સંપૂર્ણ સ્વાભાવિક વાત છે કે ત્યારે જ આ સ્થાને પહોંચાતું હોય છે. મિત્રો, મલ્ટિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ 315, 322, 323 એવો કોઈ જીએલટી એરિયા લીડર તરીકે ખૂબ સફળ રહ્યા છે અને લાયન્સને થોડુંક સાચું બહુ મોટું નામ અપાવ્યું છે. સંજય ખેતાન નેપાળ ખાતે યોજાયેલા 41મા ઇસ્લામિક ફોરમના ચેરમેન રહ્યા છે અને આ ફોરમ ખૂબ જ સારું અને સફળ રહ્યું હતું. નેપાળમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો તો બધાને યાદ હશે, ત્યારે લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલે પાસે એમને એક સૌથી મોટી ગ્રાન્ટ લીધી ઓરી રૂબેલા વેક્સિનેશન માટે, અને એ ગ્રાન્ટ બહુ મોટા પાયે મળીને એને તેઓ એડમિનિસ્ટ્રેટર રહી અને સુંદર કામગીરી તેઓએ બતાવી છે. તેમના સભ્યપદ દરમિયાન 7 વર્ષના ગાળામાં તેમણે 200થી વધારે મેમ્બરને સ્પોન્સર તો કર્યા જ છે, પરંતુ 2016-17ની અંદર નેપાળની અંદર મેમ્બરશિપ ગ્રોથ માટે જ્યારે એમને ઇન્ટરનેશનલે જવાબદારી સોંપી ત્યારે તેઓએ આ 2 જ વર્ષની અંદર 46,306 નવા મેમ્બરનો ઉમેરો કરી અને એક ઇતિહાસ રચ્યો. મિત્રો,
નેશનલ હાર્ટ ફાઉન્ડેશનના તેઓ ટ્રસ્ટી છે. નેપાળ ટુરિઝમના મેં તમને કહ્યું એ રીતે તેઓ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. નેપાળ રેસકોર્સ સોસાયટી અને નેપાળ એન્જિનિયર્સ એસોસિએશનના આજીવન સભ્ય છે. અન્ય વિવિધ સંસ્થાઓમાં સક્રિય છે. એશિયા મેડિકલ કોલેજ અને બિરગંજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના તેઓ ડિરેક્ટર પણ છે. તેમના પત્ની સંગીતાજી અને તેમની બંને પુત્રી સ્નેહલ અને શ્રેયા આ સ્થાન પર સંજય ખેતાનને પહોંચાડવામાં તેમનો સિંહ ફાળો અને સહકાર રહેલો છે. તેઓએ ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યું કે સ્પેશિયાલિટી ક્લબના પ્રેરણાતા રહીને વિશ્વની અંદર 5300 સ્પેશિયાલિટી ક્લબો ઊભી કરવાનું યશ એમના ફાળે જાય છે. મિત્રો, મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી એમની સાથે લગભગ મહિને એકાદ વાર રેગ્યુલર વાતચીત કરું છું. અમે બંને જણા સાથે મળીને ઓમાનની અંદર એક લાયન્સ ક્લબ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને મને હવે એવો વિશ્વાસ છે કે તેના હાઈવે હમણાં થોડો 1 વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે ત્યાંની રાજાશાહીમાં થોડો ફેરફાર આવ્યો છે. અને હવે ડેમોક્રેટિક વેની અંદર તેઓની દેશ ચાલતો થયો છે. ત્યારે હું અને સંજયભાઈ ખેતાન અને હવે આપણા ગવર્નર વસંતભાઈ મોહલિયા સાથે મળી જરૂર પડશે તો ઓમાનના ચક્કર કાપી અને ત્યાં કને ચાલુ વર્ષની અંદર એક લાયન્સ ક્લબ એક થશે પછી અનેક થશે એની સ્થાપના કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એમાં संजय जी मैंने आपके साथ लास्ट बात की, उसके बाद प्रयत्न चालू किए, उसमें लग रहा है कि हम सफल होंगे. मित्रों, સૌથી પહેલા તેઓને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું તે પહેલા હું લાયન મીના મહેતાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવશે અને એક નાનકડી ગિફ્ટ સંજય ખેતાનને એનાયત કરે. ત્યાર પહેલા પછી તે અમને તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ. અને સાથે વસંતભાઈ મોહલિયાને પ્લીઝ. के झुंड बाज जंग की घड़ी भी तुम गुहार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी भी तुम गुहार दो. आग मान शान या आग ताव दान आगे धनुष के बाण पे उतार दो. લાયન્સ ક્લબ ઓફ મુન્દ્રા સિટીએ પણ મને અત્યારે મેસેજ આપ્યો છે કે ગવર્નરશ્રીનું આહ્વાન અમે સ્વીકારીએ છીએ અને ટૂંક સમયની અંદર એક મેડિકલ વેન પણ તેઓ મુન્દ્રા સિટી લોકોની સેવામાં રજૂ કરશે. મિત્રો, જેના માટે મને આ તક આપવામાં આવી તે બદલ ગવર્નરશ્રીનો આભાર. અને હું એમ કહીશ કે નેપાળના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર આપણા સૌના સ્નેહી એવા સંજય ખેતાનને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરતા હર્ષ અને આનંદની લાગણીઓ. સંજય ખેતાન, પ્લીઝ. भाषण के बाद का काम तो हो गया, तालियां बज गई, अब तो भाषण की जरूरत नहीं. भरत भाई ने परिचय कराया, इमेज बिगर देन लाइफ. संजय खेतान से भी बड़े संजय खेतान का आपने परिचय कराया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. एक घटना उन्होंने याद कराई, दुर्घटना थी जो बन पाया हम लोग किए. जब भी याद करता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं. भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, मैं 323 के सभी मल्टीपल के डिस्ट्रिक्टों में कई बार गया हूँ और मैं डायरेक्टर बना तो मैं कहता था कि लगता है 323 ने मेरे को पाल रखा है. पर मैं जब अहमदाबाद में फोरम था तो एक गलती हो गई मेरे से. जिंदगी में गलती नहीं होती है संजय खेतान से. मैं वाइफ के साथ घूमने आया और हम लोग का उद्देश्य सोमनाथ द्वारका जी जाना था. वाइफ कहती है आप लाइन्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, किसी को बैठे हुए को घर पे फोन कर देते हैं. तो हम लोग बोले चलो मंदिर जाना है, चुपचाप जाएंगे.
और हम जा रहे थे तो मीना जी हमारी गवर्नर थी उस समय। गवर्नर को भी नहीं खबर किया, कहीं भी नहीं खबर किया। सुनील जी से संपर्क हुआ उस समय के पीआईडी, और मैं धीरज रनपरिया जी के घर भी पहुंचा उस समय हमारे पास गवर्नर। और मीना जी से भूल हो गई, हमसे एक भूल हो गई कि हमारे गवर्नर साहब को खबर नहीं किया। तो मैंने वचन दिया था कि आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। समय नहीं मिल पाया, समय मैच नहीं हो पाया, नहीं पहुंच पाए। लास्ट ईयर हमारे इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर धीरेन भाई ने भी बुलाया, नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी बसंत बहार आई है। डायनामिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सॉरी, फर्स्ट लेडी, इमीडिएट पास काउंसिल चेयरपर्सन, immediate past district governor, both the vice district governor, dignitaries on dash, fellow lions, CEOs and guests. दोस्तों, कोरोना के बाद में जब कोरोना शुरू हुआ तो मैं कोलंबिया में था, और ये पहला अवसर है कि मैंने कोई इंस्टॉलेशन में पुणे आया था बीच में, जब आपके चारों मल्टीपल में हमारे गवर्नर साहब ने मेरे को इन्वाइट किया। ये पहला अवसर है कि मैं पब्लिक अपीयरेंस में किसी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन में आ रहा हूँ। जूम से मीटिंग अटेंड करते थे हम लोग, और बहुत मीटिंग अटेंड करी, ना भी नहीं बोल सकते जूम में। तो लोग बोलते हम 1 घंटे आगे पीछे कर लें, आपका समय चाहिए। और जूम की मीटिंग मेरे को कोरोना जैसी ही लगती है। कहते हैं कोरोना में सिम्टम ये है कि आपका टेस्ट गायब हो जाता है, आपको स्मेल नहीं आती है। मेरे को जूम में दोनों ही नहीं महसूस होता। अच्छा, एक नियम है, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ताली या तो बजा सकते हैं या नहीं भी बजा सकते हैं, लेकिन बजाएंगे तो भरपूर ही बजानी पड़ेगी। कम ताली बजाए तो रूटिंग मानी जाएगी, क्योंकि हो सकता हम आए नहीं, आपके नियम नहीं मालूम है। तो अभी मेरे को महसूस हो रहा है कि हम एक लाइव कार्यक्रम में हैं जिसमें कोरोना नहीं है। इन लायनों के, ये गिर तो लायंस के लिए फेमस है, मतलब लायंस नहीं, लायन के लिए फेमस है। हम आए, आते आते गवर्नर साहब बोले कि एक लायन बैठा हुआ है, वो आपका स्वागत करेगा, और हमको एक लाइव लायन के पास में सीधे सामने लेके गए। तो वो एक लायन बैठा था, उससे बोले और नजदीक चले जाओ। मैं बोला मैं तो जानता हूँ ये लायन है, लेकिन ये नहीं जानता इंटरनेशनल डायरेक्टर है। आप क्या पता गुजराती में कुछ समझा भी दो, तो मैं तो यहीं से ठीक हूं। दोस्तों, मैं अफ्रीका गया, नैरोबी, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, एक सीरीज ऑफ विजिट थी मेरी। उन्होंने उनके हॉल में बोले अफ्रीकन वेलकम होगा। एक कोबरा मेरे से भी बड़ा लेके नाच रहा था अफ्रीकन। तो बहुत अच्छी बात है, हम खड़े थे बीच में, वाइफ भी खड़ी थी। वो इतना मोटा था कि मेरे दोनों हाथ से मोटा था, बहुत बड़ा था। वो लास्ट में ला करके मेरे को पहना दिए, वो कोबरा मेरे को और मेरी वाइफ के गले में डाल दिए। मैं बोला ये क्या है? बोला अफ्रीकन वेलकम। मैं बोला 15 दिन का विजिट है, सारा वेलकम आज हो गया, इसके बाद कोई वेलकम नहीं होगा। तो मैं गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा, कोई विदाई करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप विदा हो जाएंगे यहाँ से। क्या पता लाइन को मेरे पीछे लगा दे। दोस्तों, हमारे गवर्नर साहब हंसमुख चेहरा और परफॉर्मेंस में भी विश्वास करते हैं। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, एमसी साहब बहुत अच्छे से कार्यक्रम संचालन कर रहे थे।
योजना को पिटारो खोली दी, ऐसा ही कुछ बोले। आप काम कुछ भी करो, ये सहयोग के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने लिस्ट का बताया। ये डायलिसिस करोगे तो इतने पैसे देंगे, ये करेंगे। साइक्लोन उड़ गया, साइक्लोन में छत उड़ गई तो वो बनवा दिए, और आपने भी भरपूर किया साहब। चाहे वो डायबिटीज का काम हो, चाहे पेड़ लगाने का काम हो, 5 क्लबों का खोलने का काम हो, पॉजिटिव मेंबरशिप ग्रोथ का काम हो, एमजीएफ देने का काम हो, मैं तहे दिल से आपको बधाई देना चाहता हूं, हमारे सुंदर भविष्य को बधाई देना चाहता हूं। तालियां बजाएं। दोस्तों, ये दुनिया हमारी है। अभी भरत भाई ने बहुत कुछ बताया, और मैं नेपाल के बारे में कभी कभी कुछ कुछ बोलना पड़ जाता है, क्योंकि मैं जब आता हूं तो पूछता हूं होस्ट से क्या चीज की बात करूं। वो मेरे को कहते हैं नेपाल की बात करो, संजय खेतान की बात करो। मैं ब्रांड एम्बेसडर जरूर हूं इस ड्यूटी के जरूर यहाँ पर, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में बोल जाता हूं कभी कभी। उसको एग्जाम्पल ही मानिएगा, कोई महिमा मंडन मत मानिएगा। वैसे भी ज्ञान देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं हरिद्वार गया था हमारी वाइफ के समय, मेरा ध्यान नहीं पड़ता उस बोर्ड पर, लेकिन वाइफ का ध्यान पड़ा। उसमें लिखा हुआ था, यहाँ ज्ञान न बांटें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। वाइफ ने मेरे को बोला, देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी अभी लिस्ट सुनाई हमारी एमसी ने गुजरात के लीडर्स की, तो आपको एक से एक, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपिता हो, चाहे लोह पुरुष हो, सभी गुजराती के साथ। तो आपको ऐसे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शेरों की बात करें, जंगल का राजा कौन है? बोलते क्यों नहीं? अच्छा, इसमें कोई और व्यू भी है किसी का? नहीं, कोई का मन में आ सकता है। कोई इलेक्शन से डिक्लेयर तो हुआ नहीं, मोदी जी की तरह 14 में और 19 में इलेक्शन तो जीता नहीं उसने। हमारी वाइस गवर्नर रॉयल फैमिली से, वैसे वो कोई उसकी कोई रॉयल्टी भी स्टैब्लिश नहीं है। क्यों जंगल का राजा लाए हैं? हाँ साहब, हमारे भरत भाई बोलते हैं पावरफुल है। हाँ, पावरफुल मतलब हाथी को आप जानते हैं, यदि पैर के नीचे पड़ जाए हिल नहीं सकता ऐसा। उसकी ताकत और उसकी ताकत अनपैरेलल्ड है, एनी अदर रीजन। बोल सकते हैं, गवर्नर साहब नाराज नहीं होंगे, कुछ भी दिल में आए बोल सकते हैं। संजय का यही उसूल है कि हम संवाद करते हैं, कोई इस चीज की बात ही नहीं है। एनीथिंग यू कम्स टू योर माइंड, फियरलेस, डर नहीं लगता साहब। हाँ, बेस्ट लीडरशिप। कभी भाषण करते देखा या कभी लोगों को उसके और जानवरों को इसके पीछे चलते देखा? हाउ, व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप? एटीट्यूड टू विन, जीतने की एक उसमें अपनी कुवत है, और कोई कारण? डेयरिंग। इन सब का जवाब दूंगा साहब मैं, ये वो होलसेल में देते हैं, समय कम होता है। दोस्तों, आज अपने इतिहास करेंगे, और आप याद रखें, लायनिज्म और लायनिज्म के बाहर सब चीज ध्यान से सुने, ये बहुत काम करेगा आपको। देखिए, मैं बताता हूं, सबसे लंबा जिराफ उससे लंबा है या नहीं? सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? चीता है। पावरफुल हम लोग बोल चुके हैं। और क्या होता है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन, किसको बोले? लोमड़ी, चालाक। किसी में भी टॉप नहीं करता साहब। अच्छा, सुंदरता को भी एक माना जाए, बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, तो खरगोश शायद ज्यादा सुंदर हो। उससे सुंदर बहुत जानवर होते हैं, तो देख के खतरनाक लगता है। किसी में भी टॉप नहीं करता है।
फिर भी वो राजा है। मैं कोई और बात पूछूं तो पूरे हॉल की सहमति नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस बात पे सहमति है, किस बात का राजा है? आप बोलते ना किसने बोला, डेयरिंग है, ये है। अच्छा आप ये बताओ, हमारे गवर्नर साहब तो बहुत एक्टिव है, हंसमुख भी है, इनके साथ मैं भी 13 लाइन के बीच में आ जाऊं, और वो भी गिर के लाइन्स जो सुनते हैं वो गुजराती हैं, बहुत सीधे हैं। बाकी लोग बाकी जगह के लाइन्स बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा बोलते लोग। खतरनाक अफ्रीकन लाइन्स के बीच में हम दोनों फंस जाएं, और भाभी जी तो साथ ही रहेंगे गवर्नर साहब के साथ, वो भी उसमें आ जाए, क्या होगा? बोलना नहीं चाहते? क्या होगा? 13 अफ्रीकन लायंस, और जिनको आप लीडर कहते हैं, वो उनके बीच में। कुछ तो बोलो। हाँ, क्या होगा? सोचिए ना, क्या होगा? क्या होगा? वही बोल रहा है, शुभ शुभ बोलो। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, या वही होगा जो लाइनों को खुद मंजूर होगा। डिपेंड करेगा कितने भूखे हैं, है या नहीं। जवाब दीजिए साहब। आप ना बोल सकते हैं। सर एक वीडियो आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो चलाया, ये मसाई मारा का जंगल है, खतरनाक जानवरों की डेफिनेशन में टॉप पे आता है, और होलसेल में जानवर मिलते हैं। ध्यान से देखिए। His two friends are essential. Lions aren't easily intimidated. First, Rakita must find the tracks of a lion bride on the hunt. By 65, he's a veteran hunter and takes the lead. They must watch their backs. ये शिकार नहीं कर रहे, लाइन को खोल रहे हैं। Rakita. They're up against 15 hungry lions, but if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill. They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. डेयरिंग लाइन्स को देखिए, हिम्मत वाले हैं ये। Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat.
क्या हुआ सर? हंग्री लायन इज ए डेंजरस लायन, एंग्री लायन, क्या क्या बोलते हैं ना, गवर्नर को भी बोलते हैं खाने के समय लेट मत करो, भूखा लायंस बहुत डेंजरस होता है। भूखे लायंस का अपना शिकार किया हुआ निवाला उसके मुंह से छीन के ले गए। क्या हो रहा है? ये वीडियो मैंने देखा बीबीसी पे, बीबीसी करस्पॉन्डेंट को फोन करके पूछा इज इट अ फैक्ट? बोला कल बताएंगे, और कल बताया इट हैपेंस एवरी डे इन द जंगल्स ऑफ मसाई मारा। तो डेरिंग नहीं है साहब, उसकी ताकत उसी के पास रह गई साहब। जो डर के भाग गए वो क्या ताकतवर थे? So what is the conclusion? It is you and your state of mind which builds the world. आपके दिमाग से आप कुछ सोचते हैं, वही आपका विश्व बनाता है। वो मसाई इस आस्था से जीता है कि ये लायन हमारे गुलाम हैं। उनको बच्चे से पढ़ाया जाता है मतलब उसकी पुस्तकें बताती हैं, और हमको शिकार नहीं करना। मेरा गुलाम यदि मेरे पास है तो गुलाम शिकार करेगा साहब। हम तो सिर्फ क्या करेंगे? लायन को खोजेंगे साहब, उसका काम है शिकार करना। लायन क्यों डरता है उससे? उससे ज्यादा पावरफुल है। देख के तो नहीं लगता, ऐसा लगता था उस मसाई को एक आध थप्पड़ मार के मैं भी गिरा सकता हूं, थोड़ा मेरे को ज्यादा पावर जैसा लगता। जब लायन भाग रहे थे, आपने ध्यान दिया उसके कब्स भी भाग रहे थे, छोटे बच्चे भी भाग रहे थे ना। जब वो बड़ा होगा तो क्या करेगा? वो भी भागेगा। दोस्तों, हम डर के जिए। हमको गवर्नर साहब दिखाने तैयार हुए। गवर्नर साहब बोले आगे चलो, मन बोला बस हो गया, कल इंस्टॉलेशन भी कराना है। मेरे को मेरे वाइफ के साथ में काउंसिल चेयरमैन लेके गए मसाई मारा के जंगल में, घनघोर जंगल में। रास्ते में क्योंकि सुबह जाना पड़ता है, जानवर सुबह निकलते हैं, तो रास्ते में घनघोर जंगल के बीच में बोले कि नाश्ता कर लीजिए। मैं बोला पेट भरा हुआ है, तो दूसरे का नाश्ता बन जाए, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम तो नहीं करेंगे। बोले टेबल लगी है। बोले नहीं, टेबल से मतलब नहीं है। दो मसाई खड़े, बोले ये सिक्योरिटी है, इनको देख के कोई जानवर नहीं आएगा। एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो सत्य ये है कि विश्व में जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि विश्व मेरे हाथ में है, तो ऐसा आपको ये सोचने की क्षमता, इसी विश्व में रह रहे हैं हम। ये कोई आदम युग की बात नहीं कर रहे हैं, इसी मॉडर्न विश्व की बात कर रहे हैं। वो मसाइयों ने वैसा सोचा तो जानवर भी सोच रहा है उसके साथ वैसे। 100 गाय लेकर के एक मसाई जाता है जंगल में चराने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं है उसको छूटे। और इसमें तो तीर ले रखे हैं, तीर भी नहीं, एक डंडा लेके रखते हैं ऐसे, वो मोटा सा, उसी से चराते हैं। दोस्तों, यही जीवन है, जीवन का सत्यता यही है। और जो आप बोले पावरफुल, तो लाइन क्यों पावरफुल होता है? क्यों पावरफुल होता है बताइए? जो एटीट्यूड की बात आपने बोली, वही है उसका पावर। वो समझता आई एम द किंग, मैं राजा हूं, वो मानता है। और जब तक वो मानता है वही पावरफुल है। जब वो चलता है और जानवर हट जाते हैं, हाथी डर जाता है। जब हाथी और लायन का आमने सामने भेंटघाट होता है, मुलाकात होती है, तो लायन सोचता है ये मेरा नाश्ता बनेगा, और हाथी सोचता है ये मेरा को खा जाएगा, इसका डिनर में बन सकता हूं। इसी से पावर चला जाता है। आप जो चाहोगे वो विश्व में हो सकता है। कयामत तक किसी को चाहोगे तो कायनात आपकी इच्छा पूरी करेगी। डेस्टिनी विल गो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। यही सत्य है सर, जो हम नेपाल कहते हैं, नेपाल का यही सत्य है। मैं गवर्नर बना 4800 में बना पूरे देश में,
स्वीकार्य नहीं था हमको। हम सबसे छोटे थे, प्रॉब्लमेटिक एरिया कहलाते थे। और आज 42,000 प्लस मेंबर है। इस साल के क्लोजिंग में 50,000 होंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। 4,000 का नेट ग्रोथ मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, नहीं तो 10,000 का नेट ग्रोथ हमारे देश का था लास्ट ईयर। दोस्तों, जब मैं काउंसिल चेयरमैन बना तो मेरी एक स्पीच है पोखरा में, उसका एक अंश बोलता हूं, देयर आर 2 वे ऑफ लाइफ। जीवन के 2 ही तरीके हैं जीने के। एंजॉय व्हाटसोएवर यू हैव। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हमारे पास ये नहीं है। और एक्वायर व्हाटसोएवर यू वांट। हम जो चाहेंगे वो पाएंगे। 2 तरीके हैं जीने के। ठीक है या नहीं? ठीक, क्या फर्क पड़ता है? गंजी फटी है तो है। गाड़ी मारुति वैन है तो है। और नहीं तो क्या है कि हम तो बैठेंगे तो वो बहुत बड़ी एसयूवी में बैठेंगे साहब। दोनों तरीके हो सकते हैं जीवन के। तो वो आपकी सेवाओं में, आपकी एक्टिविटी में और आपकी संपूर्ण ग्रोथ पे ये लागू होती है। आप कहां जाना चाहते हैं, देखिए कोई रोक नहीं सकता। ये सौराष्ट्र है, ये कच्छ है, यहाँ पर बहुत थोड़ी गरीब लोग भी हैं, एक कुछ नहीं रोकेगा आपको। 400-600 किलोमीटर का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा 1,000 किलोमीटर का। गरीबी के कंपटीशन में आप भाग जाओगे हमसे। हम गरीबों के गरीब हैं। So how does it matter? Nothing can stop you। मैंने आपको दिखाया, आप सोच लिए, वो आपका हो गया। जुनून होना चाहिए हमें, वो पागलपन होना चाहिए। आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ? जीवन एंजॉय कर रहे हैं क्या? यस या नो? और लायनिज्म? अच्छा, ये अभी इंस्टॉलेशन करा रहे हैं हमारे गवर्नर साहब, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, मैं कहता हूं एंजॉय तो सिर्फ पागल या बच्चा कर सकता है। ये टाई लगा के बैठे हुए लोग क्या एंजॉय करेंगे? गवर्नर नाचते हुए देख करके तो खुद नाचते हैं। आई एम मेकिंग ए स्टेटमेंट। एक पढ़े लिखे लोग, कैलकुलेट करने वाले लोग क्या एंजॉय करेंगे? आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं तो ये 2 में से एक है आप। हाँ, कोई कुछ बोला, पागल ही बोल रहा है। हाँ, पागल है। अच्छा, आप इसमें से बताएं कितने पागल हैं, कितने बच्चे हैं? हाँ, क्या पागल में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? कोई व्यू है आपका? लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं साहब? मैं साफ साफ कहता हूं सर, एंजॉय के बीच में हम देखते हैं कि फोटो कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, डांस कर रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं? डांस एज इफ नो वन इज सीइंग, इजंट इट? वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो। कल है ही नहीं साहब हमारे पास, काम करो तो ऐसा करो, तो इसको एंजॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। और हम लाइनिज्म की बात कर रहे हैं, भाई साहब बोले लाइनिज्म में पागल है। साहब, जिंदगी हो चाहे लाइनिज्म, आपको दोनों होना पड़ेगा। जिस दिन आप कोई काम लें तो वो जुनून होना चाहिए आप में कि हम कर गुजरेंगे। साहब, क्या बात करते हो? लगाइए आग, आप देखो क्या क्या करते हैं। एंजॉयमेंट करने का दिन आए तो कोट उतार के नाचिए, जमीन पे लेट के, कोई फर्क नहीं पड़ता देखने वाला क्या बोल रहा है, वो बच्चा ही कर सकता है। So that you will have to be Zununi and children, both, दोनों होने की कुवत कर होगी। दुनिया में किसने इतिहास रखा? पागलों ने रचा साहब, है या नहीं? प्लेन किसने बनाया? फ्लाइट, राइट ब्रदर्स। लोग ने पागल ही बोला था उनको।
बोला था या नहीं? बोला आदमी उड़ेगा, प्लेन उड़ेगी। बोले पागल है। ऐसे कई लोगों को पागल बोला गया, उन्होंने इतिहास बचाया। जिसको पागल नहीं बोला गया तो समझिए वो कुछ ही नहीं कर पाया। आपको कोई पागल बोल रहा है तो आप कुछ कर रहे हो, ऐसा सोचिए। धोखा दिए हैं जिंदगी में कभी किसी को? Have you cheated anyone in your life? कुछ लोग सोच रहे हैं इसको कैसे अंदाजा है इस बात का। एक बात लगता है फलाना ही बताया होगा इसको। धोखा किए हैं या नहीं किए हैं? हाँ, इधर से आवाज आ रही बहुत दिए दिए या नहीं? हाँ, नो। अच्छा, सबसे ज्यादा धोखा किसको दिए हैं? अब तो डायरेक्ट पे आ रहे हैं। देखिए, ऐ कैंसर आ रहा है, खुद को भाई साहब आगे भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सत्य है या नहीं है? दूसरों को धोखा दोगे, ये आपकी बिसात क्या है? 2-4 को दे दोगे, नहीं दे पाओगे साहब। लेकिन खुद को रोज धोखा देते हो, सत्य है या नहीं है? जोर से बोलिए। गवर्नर साहब, आपकी कैबिनेट ऐसी है जो कहती है कि हमने जम के धोखा दिया और खुद को बहुत धोखा दिया। और गवर्नर साहब भी उनके खुद में ही आते हैं, वो अपने ही हैं साहब। तो ये धोखेबाजों की कैबिनेट को मेरे को कहते हुए इंस्टॉल किया। ये इन्होंने पब्लिकली स्वीकारा। क्यों धोखा देते हैं पता है? देना चाहते हैं आप अपने आप को धोखा? कल मॉर्निंग वॉक से जाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, थोड़ी वेट बढ़ रहा है, कल नहीं जाते साहब। नहीं मतलब जाएंगे बोला था, कल थोड़ी बोला था। होता है ना, डेली होता है हमारे साथ। क्यों होता है? कुछ तो बोलो। एक हमारे वाइस गवर्नर साहब बोल रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। अच्छा, कंफर्ट बोलते हैं, हमारे साइंस में बोलते हैं नथिंग हैपेंस एट NTP। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ सकते होंगे इसका। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कुछ नहीं होता साहब इस दुनिया में, नो रिएक्शन हैपेंस। कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अच्छा साहब, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, ये तो रिजल्ट है। आए कैसे? नहीं आए कैसे? फंस गए यहां पर। डिटर्मिनेशन चाहिए। मैं बताता हूं आसान सा फलसफा। लिखिए, जो आप बोलना चाहते हैं उसको लिख लिए और पब्लिकली डिक्लेयर कीजिए आप करेंगे। है या नहीं? चाहिए डिटर्मिनेशन। पब्लिकली डिक्लेयर कीजिए कल से हम मॉर्निंग वॉक जाएंगे पूरे साथ। तब जाओगे कि नहीं? Chances are higher that you will do the thing which you have decided. You will not cheat yourself. कितने आगे जाना चाहते हैं, कितने आगे अपने डिस्ट्रिक्ट को ले जाना चाहते हैं? दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। We were absolutely not growing. बढ़ ही नहीं रहे थे साहब। गाड़ी अटक गई थी, 3 क्लबें बनती थी, 5 बंद होती थी, 4 बनती थी, 2 बंद हो जाती थी। आज हम रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। रिटेंशन इज वेरी हाई। चाहते हो आपके साथ ये हो? चाहते ही नहीं हो गया? बोले चाहने के साथ साथ ये कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा। चाहना खतरनाक है। चाहते हैं या नहीं है? अच्छा, प्रश्न बदल लेते हैं। बोलने को हम मजबूर कर देंगे साहब आपको। क्या बात करते हो? कितने नंबर पे देखना चाहते हो अपने गवर्नर को? हाथ ऊपर करके बोलो। 5 ऐसे बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। हाँ हाँ, सभी 1 बोल रहे हैं। 1 नंबर पे गवर्नर साहब 1 नंबर पे देखना चाहते हैं साहब आप? हमारी डिस्ट्रिक्ट को 1 नंबर पे देखना चाहते हैं आप? आपकी डिस्ट्रिक्ट को? सर, शेरों वाली गर्जन तो हो, यस या नो? कारण बताइए।
5 नंबर भी बड़ा अच्छा है सर। हम अभी इस साल इस वर्चुअल कन्वेंशन के में नेपाल 3rd पे आ गए। पैरेड में हम कभी जीते नहीं। हम कहाँ बैंड लेके चलते थे, वो इंटरनेशनल में बहुत बैंड लेके आते हैं, तो हम 3rd नंबर पे आ गए। हमको किसी ने बधाई दी कि साहब आप 3 नंबर पे आए, संजय जी बधाई। मैं बोला ये नहीं, बधाई नहीं, आफत है। मैं आज तक कभी पैरेड पे ध्यान नहीं दिया। 3 नंबर पे आया, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अब 1 नंबर पे आना ही पड़ेगा। मजबूरी खड़ी की है इंटरनेशनल लेवल के सामने। आप 1 नंबर पे जाने का कारण बताओ अपना। उसके आगे कुछ नहीं है। बोलिए साहब। आपने बोला आपने दिमाग में जो सोचेंगे वो करके आएंगे, और वो सबके सामने बोल दीजिए। इसीलिए हमने आपको बोला कि हमारे लीडर मजबूत है, नंबर 1 नहीं रहेंगे हम इसके साथ हैं। हमने बोला कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, साहब ने खुल के देखे। बोला उसमें क्या कंजूसी है, एक से नीचे कुछ देखेंगे नहीं। बिल्कुल सही है सर, हमको तो इसमें मजा आता है। ये लायंस क्लब दिमाग का मामला है ही नहीं, ये दिल की बात है साहब। मैं भी दिमाग में नहीं आता हूं, दिल में ही आता हूं। सलमान खान का डायलॉग है। और कोई कारण? एक से आगे अनंत है। 2 नंबर पे रहना नहीं चाहते। 2 नंबर पे क्या रहना है सर? हमारा कारण सिंपल है, हम किसी के पीछे नहीं खड़े हो सकते सर। सिंपल। हम जहां खड़े होते हैं, कालिया फिल्म का डायलॉग। दोस्तों, ये जुनून अपने लिए बनाइए, बनाओगे ये होगा। मैं निश्चित करके जा रहा हूं, इस साल ये होगा। हम लोग ने सोमनाथ प्रभु का आशीर्वाद दिया है। कल ध्वजा गवर्नर साहब के नेतृत्व में हम लोग ने अर्पण की है प्रभु के चरणों में। महादेव की नगरी में आके न होने का तो सवाल ही नहीं है। दुख लगा कि सोमनाथ में लायंस क्लब नहीं है। अपना इस शहर में, उनको नाम बोलने में बड़ी तकलीफ सी होती है, कलाला, हम डरते हैं कभी हलाला ना बोल दें। तो इसमें लायंस क्लब नहीं है। हमने बताया साहब, नेपाल का नियम है जहां हम बैठ के चाय पी सकते हो, लायंस क्लब होगी ही होगी। जहां हमारे चाय पीने की फैसिलिटी है तो वहां लायंस क्लब भी होगी। क्या तैयार हैं आप? यस या नो? ये सर एक एक्सरसाइज है, ये माइंड खोलने की, ब्लॉक माइंड्स। हम 5 कर सकते हैं साहब, हम 10 कर सकते हैं साहब। ये ब्लॉक माइंड है। बैलून को एक बार ब्लो कर दिया जाए, उसमें से हवा निकाल दी जाए, तो ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं आता। वो कुछ फैल चुका होता है, हमको अपने माइंड को फैलाना है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। नेपाल ने इस साल हमारे प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर डगलस को 1 हफ्ते में कितनी क्लबें दी होंगी? अंदाज करके बोलो। हाँ, 100। संजय खेतान के आगे ताकत लगाओ ना, आलतू की बात करने आए, वही सत्य होगा। सही से बात की तो सत्य नहीं होगा। और ताकत लगा के बोलो। बोलिए बोलिए, फिगर बोलने में क्या जाता है, कहीं आप सही भी हो सकते हैं। 194 क्लब्स, फर्स्ट वीक ऑफ दिस टेन्योर, ऑल मनी पेड। दोस्तों, कुछ भी संभव है, कुछ भी। आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो, बस इतनी बात है। वो क्या है, पुराना बोझा, हम गार्बेज बहुत सर पे लिए घूमते रहते हैं। हमारे इतने हुए, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड ऐसा है। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड सुना है आपने सर? 10 साल में कभी हुआ ही नहीं। हमारी डिस्ट्रिक्ट बनी तब से नहीं हुआ। ऐसा ही ट्रेंड है। वी आर द ट्रेंड सेटर। हम सेट करेंगे ट्रेंड। बसंत जी के नेतृत्व में ट्रेंड सेट होगा। बसंत जी सेट करेंगे।
क्या आप तैयार हो गया? शुरू हो जाए? बोले शुरू तो पहले से हो रखे हो, अब रुकना क्या है? जब तक ये जो वाणी सुनते हैं ना, ये सुनना ही नहीं है सर। 2 बच्चे, बहुत प्रेम था, 8 वर्ष और 13 वर्ष के, खेल रहे थे एक कुएं में, इनार बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें बड़ा भाई गिर गया। 8 वर्ष का बच्चा डोरी लगा के बड़े भाई को निकाला, छोटा भाई। संभव है कि 8 वर्ष का बच्चा निकाल सकता है क्या 13 वर्ष के? संभव है या नहीं है? बोले ये तो जमाना ही चल रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा क्यों, ये तो हम पूछेंगे, आपको मालूम होना चाहिए क्यों पूछते हैं हर एक चीज में। क्या? परफेक्ट, भाई साहब उसी में से एक थे। ये कभी भी नहीं संभव होता, उसके आर पार दूसरे आदमी होते हैं। तेरे से नहीं होगा और उससे नहीं होगा। जब मैं नेपाल का ग्रोथ बना रहा था, मेरे को हर कोई बोलता था मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट, चैंपियन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर से ऊपर बैठने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, स्टीप राइज मीन्स स्टीप डाउनफॉल। 42,000 हो गए सब, 4,800 में तो नहीं जाएंगे वापस, संभव नहीं। एवरीथिंग संभव है, हम चाहें वो हो सकता है। कई आपको लगता होगा कि आप स्पीकर नहीं है, भाषण नहीं देना आता, आपको लगता है? बहुत लोगों के मन में आता होगा, आता है या नहीं? मैं एक बताता हूं, एक अभी बहुत बड़े स्पीकर हैं, उनको पहली बार जिंदगी में स्पीच देने का मौका आया, कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक स्पीच बना ली बहुत अच्छी और रट ली, मगध बोलते हैं ना, कुछ समझते हैं ना रटना, याद कर लिया उसको बार बार बोल करके। शीशे के सामने पढ़ा, सब जगह पढ़ा, और एक कागज में बना के पीछे में बैठा, कोई बैठ गया, उनका जहां नंबर आया वहां पर। तो बोलते हैं बहुत ज्यादा याद करते हैं तो क्या होता है, कागज आपके सामने आ जाता है, आंखों के सामने, ऐसा होता है ना। तो वो सामने आ गया उसके, लेकिन कागज ब्लैंक था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। उस शुरुआत की कुछ चीज यदि याद आ जाती है तो पूरा स्पीच याद आ जाता है। वो दौड़ के गया, कहां गया? बाहर गया, बाथरूम में चला गया। सबसे अच्छा वहां निकाल के कागज देख लेंगे धीरे से। बाथरूम में कागज निकाल के जल्दी जल्दी पढ़ना चाह रहा था, तो उसके बैच की एक लड़की आ गई। लड़की पूछी, नर्वस हो क्या? ये कैसे संभव था, अपने बैच की कॉलेज की लड़की के सामने ये बोलूं कि नर्वस है? नर्वस तो था, लेकिन बोला नहीं नहीं नहीं, नथिंग नर्वस, वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे थे। बोला नर्वस नहीं हो तो लेडीज बाथरूम में क्यों हो? साहब वो लेडीज बाथरूम में था, जब लड़की अंदर आई तो भी उसको होश नहीं आया, क्योंकि वो अपने में ब्लॉक था। He became one of the best speaker of the country. हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। आप कहां तक जाने की तैयारी करते हो, कहां तक का सोच बनाते हो, कभी कोई चीज स्वीकार सकते हो या नहीं हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हो। कभी कभी हम बोलते हैं करने तो हम इतना करेंगे लेकिन बोल कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? बोलते हैं ना हम लोग डायबिटीज पेशेंट तो 1000 करेंगे लेकिन बोल रहे हैं 500, इसका मतलब क्या है? व्हाट दैट मीन? हाँ, हाफ हार्टेड नहीं साहब, वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा है, खुद बोलने से तैयार नहीं है, वो अपने फिगर्स पे खुद खड़ा होने तैयार नहीं है। इट्स नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। एक और चीज पूछ ही लेता हूं, कल मैंने पूछा था लेकिन आज आप लोग सब प्रेजेंट हैं। आप क्रिएटिव होना चाहते हैं कि नहीं? क्रिएटिव होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं? यस और नॉट? अब मतलब क्या होता है क्रिएटिव का? व्हाट इन योर आईज इज क्रिएटिव? आपकी नजरों में क्रिएटिव होती क्या है? हाँ, कुछ तो सब करते हैं। क्रिएटिव क्या होता है? बोलिए साहब, कुछ भी दिल में आता है बोलिए। नया नया
नया मतलब एक की शादी होती है वो क्रिएटिव है, पहले तो नहीं हुई। मेरे इधर से आवाज आ रही है पागल 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 ही क्रिएटिव है। मेरे को डाउट है, बाद में कुछ दिन बाद बोले थे एक पागल ही आया था इंस्टॉलेशन कराने। असंभव को संभव करे, ऐसा क्रिएटिव है। हाँ, अच्छा मान लो हम क्रिएटिव है नहीं, हमको मालूम नहीं है, हम क्रिएटिव होना चाहते हैं, क्या करें ये बता दो। आज आपने कहा सबने क्रिएटिव बनना है, क्रिएटिव बनने के लिए करें क्या? जो काम ना हो सके वही करना है, वाइस गवर्नर का कहना यही है। हमारा सिंपल तरीका है, माइंड को बंद करो, यू आर क्रिएटिव। ताली बजा सकते हो, नहीं बोलता बजाने के लिए, किसी ने पीछे से बजाई थोड़ी सी तब बोला। माइंड को बंद करो तब क्रिएटिव होगे। जब तक माइंड चलेगा यू आर कैलकुलेटिंग, हिसाब किताब कर रहे हो। आप जब तक हिसाब करोगे क्रिएटिव हो ही नहीं सकते साहब। कितनी क्लबें बनानी है, ज्यादा बोले फंस जाएंगे, वो पता नहीं किस टाइप का आदमी है। मेरे को बोर्ड में गया, पहला ईयर का लास्ट चल रहा था, एक डायरेक्टर ने बोल दिया बोर्ड पे, यू डिड वंडर्स इन योर कंट्री। बहुत अच्छा किया साहब आपने देश में, अब तो पूरे विश्व के डायरेक्टर, डू समथिंग आउटसाइड योर कंट्री। मैं खड़ा हुआ, बोला इनका प्रोसीडिंग में लिखा जाए और मेरी बात भी लिखी जाए। नेपाल के अंदर नहीं बनाने की बात कर रहे हैं साहब, और मैं अमेरिका में, अमेरिका का डायरेक्टर था, 100 नेपाली क्लब बनाऊंगा। कोई WWF नहीं था, कोई फिक्स गेम नहीं था। उसने बोला, मैंने एक पागलपन का जवाब रिसीव किया। हमारे एक PID बैठे बहुत सीनियर, बोले संजय जी 100 बोल गए। और साहब होशो हवास में बोलते, ड्रिंक करते नहीं, पूरा सही है 100 करेंगे। किए साहब हमने 100। दो चीज है इसमें, एक क्रिएटिविटी वेर आई डिडंट अप्लाई कि अमेरिका में 100 कर सकते हैं या नहीं। दूसरी, इसको यदि करवाना है तो मेरी हिम्मत की मैं बोर्ड के फ्लोर पे नोट डाउन करवा के ये बोला, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं वो करने के लिए। अपने आप पर प्रेशर बिल्ड किया। यही दो चीज आपको क्रिएटिव बनाती है शायद, नहीं तो अदरवाइज यू आर नॉट क्रिएटिव। जिस दिन ये हिम्मत आप करोगे, आप अजूबे भी कर पाओगे। सोचो, एक क्लब बनाने के लिए अमेरिकन तरस जाते हैं, 100 क्लब बने तो उनका क्या हाल होगा। मैं 5 साल हो गया PID हुए, आज भी मैं सारे एरिया फोरम में जाता हूं, एंड आई हैव स्पीकिंग टाइम इन ऑल एरिया फोरम्स ऑफ द वर्ल्ड एट द कास्ट ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल। सो व्हाट हैपेंड, वो मैंने प्लान नहीं किया था, बट वो क्रिएटिविटी मेरे को वहां तक ले गई। दोस्तों, स्पेशलिटी क्लब उसी की उपज है, जो यहाँ के अभी भरत भाई बोल रहे थे ओमान में क्लब बनाएंगे। ओमान में क्लब ही नहीं है, व्हेन ही मेक्स दैट क्लब हैपन, जो कि उनके पास तैयार है, ओनली गवर्नमेंट रूल्स में फंसी हुई है। तो आप समझो, आप एक देश बढ़ा रहे हो लाइन। हमारे गवर्नर साहब बता रहे हैं कि इसी साल न्यूयॉर्क में इंडियन गुजराती लोगों की एक क्लब बनाएंगे। एक स्पेशलिटी क्लब है, ये आपकी गुजराती कम्युनिटी को वहां लोकल कम्युनिटी से जोड़ेंगे। स्पेशलिटी क्लब के बारे में कितने लोग जानते हैं? स्पेशलिटी क्लब्स, दोज क्लब्स व्हिच हैव स्पेशल इंटरेस्ट, यानी एक प्रोफेशन के लोगों की क्लब, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी हो सकता है, जुम्बा, अर्जेंटीना में टेंगो डांसिंग, यूरोप में वाइन टेस्टर, वाइन ड्रिंकर्स नहीं कि आप दरों के क्लब बनाए, वैसा नहीं, नो, वो मतलब किसी भी तरह के क्लब बन सके, सॉकर क्लब्स,
हॉबीज क्लब, सिंगल सर्विस कॉज क्लब, हमको डायबिटीज में काम करना साहब, एनवायरमेंट में सिर्फ काम करने चाहते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज की क्लब, यहाँ पर आपके महाराष्ट्रियन होंगे, साउथ इंडियन होंगे, बंगालीज होंगे, पंजाबीज होंगे, उनकी क्लब, उनकी कम्युनिटी क्लब्स, वो स्पेशलिटी क्लब है। आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स की क्लब, हॉस्पिटल्स की क्लब, आप जिसकी चाहे क्लब बना सकते हैं बहुत आसानी से, इजी टू फॉर्म, easy to survive. I lead specialty club organizes a program globally. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, लास्ट ईयर 1791 स्पेशलिटी क्लब वर्ल्ड वाइड बनी है, which is 57% of the clubs formed worldwide. यानी मेजॉरिटी ऑफ क्लब्स फॉर्म्ड इन वर्ल्ड इज स्पेशलिटी। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, स्पेशलिटी क्लब बनाएं, इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने मूल विषय पे आते हैं। आपने कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को 1 नंबर पे देखना चाहते हैं, बोले 1 नंबर नहीं छोड़ेगा लगता है। कैसे देखेंगे बताइए? कुछ आता है 1 नंबर के प्रति, कुछ आता है कि हम ये करके देखेंगे साहब? अच्छा, गवर्नर का साथ तो देंगे 1 नंबर बनने के लिए? यस या नो? कि गवर्नर तुम बनो, हम तो 1 नंबर का ऐसे अंगली दिखा दिया करेंगे हाथ ऊपर करके, साथ देंगे? अच्छा, हम कई बार बोलते हैं नॉट गुड स्पीचेस बट द गुड एग्जाम्पल्स ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी। तो जब एग्जाम्पल कोई देता है तो हमको लगता है साफ करते तो मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी, मैं भी तो कर सकता हूं। हार्ड मार्क्स का ये, हार्ड मार्क्स पे नो मैं। तो हम नेपाल का आपको एग्जाम्पल दिए, इतनी क्लबें बना ली हम लोग। इस साल हम लोग ये प्रयास करें। देखिए, मैंने आपको अभी छोटी सी विजिट में जगह बताई कि भाई इन जगहों पे क्लब ही नहीं है। मैं राजकोट में लैंड किया, राजकोट की पॉपुलेशन 20-30 लाख की है। काठमांडू की कितनी पॉपुलेशन होगी? 40 लाख। चलो मैं बता देता हूं, ये गेस नहीं करने देते हैं। क्लबें कितनी होगी काठमांडू में? गेस इट। हाँ, कितनी? हमको देख के गेस कीजिए साहब, फालतू की बातें करने का सही निकलेगी। हाँ, ज्यादा ही फालतू होती है। 500 clubs, 500+ clubs in Kathmandu only. इलेक्शन लड़ना पड़ जाए तो चाहे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हो, संजय खेतान को तो फोन करना ही पड़ेगा। ये पावर आप चाहते हो या नहीं? यस या नो बोलो। कुछ करना पड़ेगा साहब। तैयार हो क्या? अपने अपनी जगह को याद करो। और 2-3 चीज बातें की हैं, मैं रिपीट कर लेता हूं। क्रिएटिविटी मतलब ब्लॉक माइंड्स बंद कर दो साहब। वैसे भी दिल का ही मामला है, लायंस क्लब भाई दिमाग का मामला ही नहीं है। आप अपनी अपनी दुकान छोड़ के, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं अनपेड। मैं नेपाल से आ रहा हूँ, जैसे लग रहा था अमेरिका जा रहा हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में नाइट स्टे, वहां से राजकोट आओ, राजकोट से बहुत लंबा जर्नी, कोई पेमेंट नहीं सर, तो दिल से ही आया। तो दिमाग का प्रयोग कब होता है क्रिएटिविटी में? वंस यू मेक द अनाउंसमेंट देन यू अप्लाई योर माइंड हाउ टू मेक इट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि दिमाग वर्जित है, लेकिन पहले क्रिएटिव होना, फिर प्रयोग करना। दूसरा क्या है? इफ यू वांट टू मेक इट हैपन, क्या करना पड़ेगा आपको? पब्लिक कर दीजिए बातों को, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे दारू छोड़ने की हो, चाहे कुछ करने, कुछ भी हो, पब्लिक होना चाहिए। देन इट विल हैपन एट एवरी चांस। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे गवर्नर साहब का के नेतृत्व में इस साल
हम लोग वो इतिहास रचना चाहते हैं कि जो हम लोग ने अभी तक नहीं सोचा था, करेंगे इस साल। क्लबें खोलेंगे हम, हमारे सेवा के हाथों की वृद्धि की जाएगी और वो वृद्धि होगी जो इतिहास याद करेगा कि गिर के जंगल में इन्होंने ऐसा किया था। ये कैबिनेट थी जिसमें आप शान से कहोगे हम भी थे, ऐसा हुआ था। लेकिन अकेले नहीं होगा और संजय खेतान को बोल के चला जाएगा। एक खेतान फैन का एडवर्टाइजमेंट आता था, नाम ही काफी है, उसकी पंच लाइन थी, तो वैसे ही सिर्फ नाम ही रह जाएगा। करोगे सिर्फ आप और आप ही। मैं आपसे खुले रूप में आज पूछना चाहता हूं दो चीज, माइंड ब्लॉक नहीं करिए, खुल के बोलिए। दूसरी बात, पब्लिकली बोलने की हिम्मत बनाने तो बनाएंगे, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे, उनसे नहीं बनेगी, मैं गारंटी देता हूं। इफ यू थिंक इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन, यू विल बी ट्रू। इफ यू थिंक इट विल हैपन, इट विल हैपन, यू विल बी ट्रू। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस साल क्लबें बनाना चाहते हैं तो हाथ उठा करके बताएं कितने क्लबें बनाना चाहते हैं। कृपया हाथ उठाए हुए साथी आगे आए। आए साहब, साहब आए, आपने उठाया था, वीडियो कहां है? खाली हमारी वीडियो थोड़ी ली जाएगी साहब। और कोई हाथ उठाना चाहते हैं? हम आपको बोलते हैं, हमारे वाइस गवर्नर्स, हमारे पास गवर्नर्स, उनसे किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, उनको ही देख के हम जीते हैं साहब। वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। जोन एंड रीजन, आप एक बसंत भाई के जोन एंड रीजन है, और एक बोलते हैं जन्म स्थल का महत्व है। भगवान कृष्ण जेल में जन्मे थे तो उन पे सारा असर हो गया, चोर और चक्कों के सारे गुण आ गए उनमें। चोरी करना माखन चोर कहलाए, गोपियों को छेड़छाड़ करना, मतलब सर्वगुण संपन्न हो गए, झूठ भी बोल लेते थे। प्रभु हैं, उनके भक्त हैं, उनका अनादर नहीं कर रहे हैं, हमारे धर्म में सिर्फ इतना अलाउड है, लेकिन थे उनमें सर्वगुण, सिर्फ जेल का असर हो गया बोलता है। और बोलते हैं आजकल डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बनते क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होते, डॉक्टर उन पे झुके रहते हैं, जब बच्चे होते हैं उन पे असर हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पहले नहीं होते थे, बेचारी दाई बच्चों का जन्म करा देती थी। तो देखिए, कुछ न कुछ तो हमारी इस कोरोताई का भी असर कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी कुछ क्रेडिबिलिटी लगी है इस इंस्टॉलेशन में आपके जन्म के समय में। दोस्तों, एक और जिंदगी की बात मैं बोल देता हूं, आपकी हाईएस्ट एनर्जी कब होती है? जिंदगी में हाईएस्ट एनर्जी लेवल कब होता है? कुछ मन में आए बोलो ना। हाँ, युवा तो हम हरदम रहते हैं साहब, नंबर गेम थोड़ी है साहब। आप युवा ही है तो वाइस गवर्नर साहब, इमीडिएट पास्ट गवर्नर साहब युवा ही है, हम भी युवा ही हैं। तो युवा तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या कब होता है? हाँ, जब आप कोई चैलेंज स्वीकारते हैं, जब आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसमें हाईएस्ट लेवल होता है। उसका कारण क्या है? क्यों उठता है वैसा जुनून? रोज रोज क्यों नहीं उठता है? बोले जी, इंटरनेशनल ने संजय खेतान को बनाया स्पेशलिटी क्लब चेयरमैन, सारे पीआईडी लायक थे। कई पीआईडी तो सोचते थे फालतू आदमी है, इससे मैं लायक हूं। 3 दिन नहीं सोया था, चेयरमैन बनाया उसने। मैंने एक एक चीज लिखा कि ये करना है मेरे को, ऐसे ऐसे करेंगे। पूरी उसकी बुकलेट मैंने पेश की लाइंस इंटरनेशनल को। आज स्पेशलिटी क्लब का पूरा प्रोग्राम उसी पे चलता है।